हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में गया है कि इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 विद आई कैप, ओके, पाई बाय 4 with j cap and an acute angle theta with k cap, then we need to find the value of theta. ओके, एक यूनिट वेक्टर है a वेक्टर. ओके, सो हम एक वेक्टर a लेट कर लेते हैं. ओके, दिस विल बी इक्वल्स टू a1 i cap प्लस a2 j cap प्लस a3 k cap. अब ये हमें गिवन है कि ये यूनिट वेक्टर है, so magnitude of this vector it will be equals to 1. Okay, so it means that how we can find the magnitude? a1 square plus a2 square plus a3 square and this whole under the root, this will be equals to 1. This is the format of finding the magnitude of vector. Okay, so अगर मैं squaring कर लूँ तो a1 square plus a2 square plus a3 square it will be equals to 1. Suppose this is our equation number 1 here. Okay, so first condition क्या है कि it is making angle pi by 3 with I cap. Okay, so we know dot product. Okay, dot product it gave us the angle between two vectors. Okay, so we know that angle between two vectors cos, okay, angle it is given pi by 3. It is equals to dot product of these two vector means a vector dot with second vector is what, k I cap. Okay, and magnitude of these vectors, and magnitude of I cap will be 1, so no need of writing this. And we know that value of cos pi by 3 is what, half. So let's write here half. It will be equals to, okay, dot product of a with I, so this will be a1 only. Okay, because you can see a1, this with dot product with I will give us only a1. Okay, divided by this magnitude is 1. Okay, so this implies that we have got value of a1, it will be equals to 1 upon 2. Okay, this is the value of a1. Now next condition is what? Next condition जो हमें दी है वो है it is making pi by 4 angle with j cap. So हम same case यूज कर लेंगे. So cos pi by 4 now. Okay, it will be equals to a vector dot product with j cap now. Okay, and magnitude of a vector and magnitude of j will be also 1, so no need of writing this again. Okay, so what is value of cos pi by 4? It is 1 upon root 2. So let's write here 1 upon root 2. It will be equals to, okay, so this will be what? This will be a2 here and 1. So this implies from here we have got that value of a2. ये क्या हो जाएगी हमारे पास 1 upon root 2. So हमारे पास a1 a2 की तो वैल्यू आ गई. ओके, अब अगर हम थर्ड कंडीशन देखें तो थर्ड कंडीशन है कि ये थीटा एंगल बनाएगा k कैप के साथ. ओके, सो यूजिंग सिमिलर वे cos थीटा इट विल बी इक्वल्स टू a vector dot product with k cap and magnitude of a vector and k cap magnitude will be 1. Okay, so this implies here, okay, cos theta it will be equals to a3 here. So a3 value is what? Cos theta. Now look, we have considered equation 1. Okay, इसे हम लिख लेते हैं. So this was our equation number 1. Okay, अब values put कर लेते हैं. a1 की value हमने calculate कर ली है, वो है 1 upon 2. So 1 upon 2 whole square plus a2 की value 1 upon root 2 है, ये भी हमने calculate की थी, plus a3 is what? Cos theta. So cos square theta equals to 1. Okay, so यहाँ से हम easily value find out कर सकते हैं. Okay, what we'll do? This will be 1 upon 4 plus 1 upon 2 plus here it will be cos square theta equals to 1. So from here cos square theta it will be equals to, okay, shift the values to the other side, 1 minus 1 upon 2 minus 1 upon 4 here. Okay, so taking LCM it will be cos square theta equals to, LCM will be 4, so 4 minus 2 minus 1 upon 4. Okay, so 4 minus 2 is 2, 2 minus 1 is 1, it will be equals to 1 upon 4. This is the value of cos square theta. And if I want to find the cos theta value, it will be equals to plus minus 1 upon 2. Okay, now come back to the question. Since it is given that this is acute angle, theta is acute angle. Acute is what? Acute angle is the angle which is more than 90 degree. Okay, so for cos to be, for this theta to be more than 90, what I will do? I will take that value which gives us angle less than 90. So cos theta will be equals to 1 upon 2, because for this value only we will get angle less than 90. Theta will be less than 90. So cos theta it will be equals to, okay, so cos 60 is 1 upon 2. So here I'll write cos 60 is what? Pi by 3 here. Okay, so on comparing what we'll get that value of theta it will be equals to pi by 3. And what we need to find in the question? We need to find the value of theta. So it is equals to pi by 3. Okay, there will be one more value of theta, but हमें तो वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये थीटा एक्यूट हो. सो थीटा विल बी एक्यूट फॉर 1 upon 2, not for minus 1 by 2. So final answer will be theta equals to pi by 3. Thank you.
Hey guys, हमारा क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल्स टू i प्लस j प्लस 2k एंड b इज इक्वल्स टू b1i प्लस b2j प्लस रूट 2k एंड c इज इक्वल्स टू 5i प्लस j प्लस रूट 2k be three vectors such that the projection vector of b on a if a plus b is perpendicular to c then magnitude of b is equals to how much। ठीक है, सॉल्यूशन तो मुझको दिया हुआ है कि ए वेक्टर जो है वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2k कैप, बी है b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस रूट 2k कैप और सी क्या है, सी है 5i कैप प्लस जे कैप प्लस रूट 2k कैप। ठीक है, और ये तीन वेक्टर हैं सच दैट प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए इफ ए। ठीक है, और इफ ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू सी देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये देखो projection of b on a is equals to how much, ये होगा b डॉट a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन का। तो ये मेरा बराबर जाएगा मेरा b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस अंडर रूट 2 k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ i कैप प्लस j कैप प्लस रूट 2 k कैप डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 2, क्योंकि अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू p1 प्लस p2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 विल बी 2 अपॉन अंडर रूट 4 2 आ गया। और ये दे कितना दे रखा है, ये दे रखा है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए होगा ये। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना निकाला मैंने अभी 2 निकाला, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए के बराबर है एक्चुअली। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 इज इक्वल्स टू b1 प्लस b2 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा यहाँ से b1 प्लस b2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, तो 1 ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब निकालो a प्लस b की वैल्यू, तो a प्लस b कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा i प्लस j प्लस रूट 2k प्लस b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस रूट 2k। तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू b1 प्लस 1 i कैप प्लस b2 प्लस 1 j कैप प्लस 2 रूट 2k कैप। अब क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि a प्लस बी जो है वो सी के परपेंडिकुलर है। तो यानी मुझे दे रखा है a प्लस बी डॉट सी 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। दिस इज इक्वल्स टू 0। सो दिस एम्प्लाइज b1 प्लस 1 i कैप प्लस b2 प्लस 1 j कैप प्लस 2 रूट 2k कैप। दिस इज डॉट प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर कितना दे रखा है मुझे, सी वेक्टर दे रखा है 5i कैप प्लस j कैप प्लस अंडर रूट 2k कैप, यही दे रखा है ना। दिस इज इक्वल्स टू 0, तो उसको मल्टीप्लाई करो, ये मिल जाएगा 5b1 प्लस 1 प्लस b2 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 2 इंटू 2 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन बनाओ, क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ बनेगी 5b1 प्लस b2 प्लस 5 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 10। सो दिस इज इक्वल्स टू -10। तो एक सौ कह दो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 ये थी। अब क्या करो तुम 1 माइनस 2 कर दो, तो तुम 1 माइनस 2 कर दोगे तो ये हो जाएगा b1 माइनस 5b1 विल बी माइनस 4b1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा मेरा 2 प्लस 12 2 प्लस 10, तो ये आ गया 12। तो दिस इम्प्लाइज b1 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b2 आ जाएगा मेरा b1 प्लस b2 जो था वो बराबर था 2 के, तो यहाँ पे तुम b1 की वैल्यू -3 डाल दोगे तो ये आ जाएगा 5। तो b2 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो मेरा b वेक्टर क्या हो गया, मेरा b वेक्टर आ गया -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस अंडर रूट 2k कैप। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो ये आ जाएगा मेरा यहाँ से 27 प्लस 9 अंडर रूट 36, तो ये आ गया 6। तो देखो 6 ऑप्शन में है या नहीं है, तो 6 इज ऑप्शन नंबर 1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू। हमारे पास 2 लाइन दी गई है और दोनों परपेंडिकुलर है 2 लाइंस। सो हमें प्रूव करना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। सो जो पहली लाइन है वो क्या है, x इज इक्वल टू a y प्लस b
z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी। ये दो हमें गिवन है, दोनों परपेंडिकुलर है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि y की वैल्यू निकालेंगे दोनों में से। सो यहाँ पे आएगी x माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू y, और यहाँ से z माइनस डी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू y। दैट इज, तो हम लिख सकते हैं x माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z माइनस डी डिवाइडेड बाई c। सो मान लो द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ दिस लाइन इज b1। जो हमारे पास b1 है वो इसका क्या है, डायरेक्शन। b1 बी द डायरेक्शन, b1 be the direction vector of this line vector। so हम b1 को कैसे लिख सकते हैं, b1 is equal to ai divided by 1 है i cap plus 1 j cap plus c k cap। so similarly हमारे पास जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन फॉर सेकेंड लाइन, जो लाइन क्या है वो x इज इक्वल टू a डैश z प्लस b एंड y इज इक्वल टू c डैश z प्लस d। सो इधर से भी हम सेम x माइनस b डिवाइडेड बाई a डैश, जो दोनों में कॉमन है उसकी वैल्यू निकालते हैं। इधर से किसकी निकलेगी, सिमिलरली z की ही, y माइनस जी c डैश इज इक्वल टू z। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे x माइनस बी डिवाइडेड बाई a डैश इज इक्वल टू y माइनस डी डिवाइडेड बाई c डैश इज इक्वल टू z। सो ये चीज़ हमारी हो गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम जैसे ऊपर लिखा था, इसके b2 मान लिया डायरेक्शन वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर फॉर लाइन 2, फॉर दिस लाइन। सो b2 क्या आएगा, a डैश i कैप प्लस c डैश j कैप प्लस 1 k कैप। नाउ हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो दोनों लाइंस है दे आर परपेंडिकुलर। क्या गिवन है हमें, दोनों लाइंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इट्स मीन दैट, इसका मतलब है जो b1 डॉट b2 होगा वो क्या होगा, 0 होगा। b1 डॉट b2 क्या होगा, 0 होगा, बिकॉज गिवन है दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। सो डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, b1 डॉट b2 कितना आएगा, a डॉट a डैश प्लस 1 c डैश प्लस c इंटू 1 इज इक्वल टू 0। सो डॉट प्रोडक्ट करके आया हमारे पास। सो इसको हम लिख लेते हैं a डॉट a डैश प्लस c डैश प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन में, आर ऑप्शन सी इज ट्रू। थैंक यू। हेलो गाइस, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर गिवन बाय। तो AB जो हमारा साइड है उसको वेक्टर फॉर्म में इस रूप में दिखाया है, ठीक है, और जो AD हमारा वेक्टर फॉर्म है उसको इस रूप में दिखाया है, जो AD हमारा साइड है, ठीक है। तो द साइड AD इज रोटेटेड, अब जो साइड AD है उसको रोटेट किया जाता है एट एक्यूट एंगल अल्फा से, ठीक है, in the plane of the parallelogram so that AD becomes AD dash। तो बोला है कि if AD dash makes a right angle with the side AB, अगर साइड AB के साथ AD dash हमारा राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो कोसाइन ऑफ एंगल अल्फा क्या होगा ये बताओ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है कि जो हमारा साइड AD था, ठीक है, AD है, AD डैश जो है वो राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर है किसके, AB के, ठीक है।
और AD डैश जो है सो वो प्लेन और पैरेललोग्राम में ही घुमाया गया। इसका मतलब AD डैश हमारा परपेंडिकुलर होगा किसके भी, उस प्लेन के पैरेललोग्राम के, प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम, इसके भी परपेंडिकुलर होगा हमारा AD डैश। ठीक है, तो AD डैश हमारा प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम के, सॉरी यहाँ पे AD डैश जो होगा वो हमारा प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम में ही होगा, बट जो प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम का जो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अगर मैं प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर का बात करूं, उसके परपेंडिकुलर होगा हमारा AD डैश। तो प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम का जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, वो होगा AB क्रॉस AD वेक्टर। ठीक है, AB क्रॉस AD अगर मैं कर दूं तो प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम के परपेंडिकुलर वेक्टर मेरे को मिल जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर होगा AD डैश, क्योंकि AD डैश हमारा प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम पे लाई करेगा। ठीक है, अब देखो AD डैश मेरा इसके परपेंडिकुलर है AB डैश के, और AD डैश मेरा इसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर फॉर्म में अपन जानते हैं वो क्या होता है, अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तीसरा वेक्टर, तो अपन उसको लिख सकते हैं ना वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में AD डैश इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ AB वेक्टर। ठीक है, AB वेक्टर, ओके, AB के परपेंडिकुलर है तो क्रॉस, और एक और किसके परपेंडिकुलर है, AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर के। तो ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, AD डैश को मैं लिख सकता हूँ इसके परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, दूर वाले का शुरू में डॉट होता है, तो ये AB वेक्टर डॉट AD वेक्टर हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, सामने वाले को छोड़ के, मतलब AB वेक्टर माइनस, फिर क्या होगा यहाँ पे, सामने वाले का डॉट होता है AB वेक्टर डॉट AB वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, दूर वाले को छोड़ के, AD वेक्टर को छोड़ के, तो ये हमारा AD डैश यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि कॉस अल्फा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो AB डॉट AD अगर मैं निकालना चाहूँ तो AB मेरे को मालूम है और AD भी मालूम है। देखो ये भी, ये है AD, ये है, दोनों को डॉट करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, तो -2 हो गया ये। ठीक है, और फिर क्या आएगा -2, और फिर देखो J वाले को डॉट करो तो ये 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, प्लस में 20। ओके, फिर क्या होगा, K वाले को डॉट करो तो 11 इंटू 2 दैट इज 22, प्लस में, और AB वेक्टर, तो AB वेक्टर हमारा क्या है, AB वेक्टर देखो 2i कैप प्लस 10j कैप, 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 11k कैप है AB वेक्टर, माइनस AB वेक्टर डॉट AB वेक्टर, तो ये क्या है बेसिकली, AB वेक्टर डॉट AB वेक्टर ये है, AB वेक्टर तो यही है, इसी का डॉट कर रहा है। ठीक है, तो ये AB का स्क्वायर है बेसिकली। ठीक है, AB का स्क्वायर मतलब 2 to 4 हो जाएगा, प्लस 10 10 100, इन दोनों को फिर से डॉट करो तो इसी को इसी के साथ डॉट करना है, तो I वाला तो 2 और 2 हो जाएगा, और 10 और 10 दैट इज 100, और फिर 11 और 11 दैट इज 120। ठीक है, और ये AD वेक्टर लिखा हुआ है, तो AD वेक्टर क्या है, AD वेक्टर है -i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है मेरा AD वेक्टर। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो हमारा AD डैश वेक्टर निकल जाएगा। देखो इसको सॉल्व करो, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है +18 और +22, तो ये हो जाएगा 8 2 2 10, 2 1 3 और 1 4, ये 40 लिखा हुआ है। ठीक है, 40 इंटू दिस 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 11k कैप। ठीक है, माइनस ये क्या लिखा हुआ है, ये 104 और ये 121। ठीक है, तो ये 104 और 121 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये 2 to 5 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 to 5, और ये हो जाएगा -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व करो तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 80i कैप प्लस 400j कैप प्लस 44k कैप माइनस 225 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस हो जाएगा 225i कैप, और ये माइनस हो जाएगा कितना, 0 5। ठीक है, और 450 हो जाएगा ये। ठीक है, 450j कैप और फिर माइनस 450k कैप। पूरे को सॉल्व करो, 80
और प्लस 225 क्या हो जाएगा 5820, ठीक है 2 1 3, ये तो 305 हो गया आई कैप। और जे वाला हमारा क्या हो जाएगा 400 और 450, यानी कि -50 जे कैप हो जाएगा, और ये 440 और ये 450, तो ये हो जाएगा -10 के कैप, ठीक है। तो बेसिकली ए डी डैश मेरा ये निकल चुका है। अब देखो इससे 5 कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है 61 आई कैप -10 जे कैप -2 के कैप, ये लिखा हुआ है ए डी डैश, ठीक है। अब देखो कॉस अल्फा जो है ना, कॉस अल्फा मेरे को क्वेश्चन में दिया है वो ए डी डैश और ए बी दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ना ए डी डैश डॉट ए बी इज इक्वल टू क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए डी डैश मॉडुलस ऑफ ए बी, और दोनों के बीच का एंगल अल्फा बोला है तो कॉस अल्फा मेरे को मालूम करना है कॉस अल्फा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा ए डी डैश डॉट ए बी डैश का वेक्टर अपॉन इनका मैग्नीट्यूड, यानी कि ए डी डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए बी डैश ए बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए डी और ए बी डैश, तो यहाँ पे ए डी डैश मेरे को मालूम है वो क्या है 5 इंटू ये देखो 5 इंटू 61 आई कैप -10 जे कैप -2 के कैप, और ए बी डैश मेरे को भी मालूम है ए बी वेक्टर, सॉरी, तो ए बी वेक्टर क्या मालूम है 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 11 के कैप, ठीक है। और ये दोनों का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमारा जो अल्फा एंगल बन रहा था ना वो अल्फा था ए डी इज रोटेटेड बाय एन एक्यूट एंगल अल्फा इन द प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब ए डी और ए डी डैश के बीच का एंगल कॉस अल्फा है, ठीक है, अल्फा है, तो ए डी और ए डी डैश हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये ए डी और ए डी डैश कर दो, तो यहाँ भी ए डी हो जाएगा, ए बी की जगह पे ए डी कर दो हर जगह, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ए डी, ये भी ए डी डैश और ये ए डी और ये ए डी वैक्टर, ठीक है। तो हमारा ए डी डैश तो ये था ही, और ए डी वैक्टर हमारा क्या था, ए डी वैक्टर मेरा ये नहीं था, ए डी हमारा क्या था, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए डी वैक्टर था 2 माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इन दोनों का मॉड मेरे को बोला है, ठीक है। तो इन दोनों का मॉड क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और अंडर में 61 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। और इसका मॉड क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, तो ये कॉस अल्फा चला आ रहा था, तो देखो तो कॉस अल्फा इक्वल टू, जब इन दोनों को डॉट करोगे तो आई वाले के साथ आई का होगा, जे वाले का जे के साथ और के वाले का के साथ, और नीचे जब सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट को तो मेरा जो टोटल आ रहा है ना वो √17/9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोल पा रहा हूँ कि जो कॉस अल्फा है वो √17/9 होगा। मेरे को यही पूछा था कॉस अल्फा, तो √17/9 होगा। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।